Okay, see here, we have started with the new chapter that was demand for money. That was chapter number 10, and it was again coming into your second module. So, demand for money, we have seen the introduction and the classical approach. So, what we have seen under classical approach, that they are giving the importance for the money demand for money, that will be basically for the transaction purpose. So, as per them, the demand for money, it will be the people are demanding money basically for the transaction. Okay, but when we come towards the Keynesian approach, so Keynes का point of view अलग था. As per Keynes, the demand for money will be depend upon the transaction motive also, as well as the precaution, or we can say the speculative also. In classical approach demand for money, they have given the importance to the medium of exchange functions of money. ठीक है. बट व्हेन वी विल सी अबाउट द केंशियन अप्रोच, तो उसने मनी का जो फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसके साथ में ही हैज गिवन द इम्पोर्टेंस टू द स्टोर ऑफ वैल्यू ऑल्सो. So these two function he has taken into consideration. किसने कंसिडर किया? केन्स ने कंसिडर किया. क्लासिकल अप्रोच ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज को ही इंपॉर्टेंस दिया. केन्स ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज वेल एज स्टोर ऑफ वैल्यू. क्लासिकल अप्रोच में ट्रांजैक्शन मोटिव को ही इंपॉर्टेंस दिया है. केन्स ने ट्रांजैक्शन मोटिव, उसके साथ में प्रिकॉशन मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव को इंपॉर्टेंस दिया है. तो मतलब क्या होता है कि क्लासिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग पीपल आर डिमांडिंग मनी for the transaction purpose, and as per the Keynesian approach, people are demanding money for the transaction, precaution, and for the speculation purpose. Okay, so now we'll go into see it in a detail. Okay, say liquidity preference approach to demand for money is based on two important functions of money, that is medium of exchange and the store of value. Prior to Keynes, economics failed to give this function their due importance while analyzing the theory of demand for money. Lord James Keynes, in his well-known book, The General Theory of Employment, Interest and Money, explained the demand for money by emphasizing more on store of value aspect of money without at the same time neglecting the role of money as a medium of exchange. ये सब हम लोगों ने देखा था कि केन्स ने उसका जो बुक था द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, उसके अंदर उन्होंने डिमांड फॉर मनी को इम्पोर्टेंट दिया है. डिमांड फॉर मनी में उन्होंने स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन को ज़्यादा फोकस किया है, लेकिन उन्होंने ये भी पार्ट को निगलेक्ट नहीं किया कि मनी कैन बी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इसके लिए दोनों को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया हुआ है. So Keynes explained the theory of demand for money by raising the two fundamental questions here. Why is money demanded? लोग क्यों डिमांड करते हैं? वाई डू पीपल प्रिफर द लिक्विडिटी? लोग अपने पास कैश रखना क्यों प्रिफर करते हैं? व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस? ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं बिकॉज ऑफ दैट द डिमांड फॉर मनी इज डिटरमाइन, और ऐसे कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जिससे लिक्विडिटी प्रेफरेंस रखा जाता है? So people desire to hold money in the form of cash, or their preferences for the liquidity, according to Keynes, is due to the fear and uncertainty regarding the future. Because they really wanted to keep the money with them because they are fear कि like पता नहीं आगे क्या होगा, emergency situation पे whether we'll going to have the money or not. So because of that fear, they are holding the money. Okay. Then the desire to hold money is barometer of the degree of our distrust of our own calculation and convention of the future. Fear and uncertainty about the future makes us nervous and the disquiet. The possession of cash infuses confidence and lulls our disquietude. The possession of cash infuses ये हो गया. Money, beside providing confidence and courage, also helps us as a medium of exchange and the store of value, thus together giving the reason or motives for which money is held. What Keynes is trying to say here, people are calculating what will be, how much will be the amount they require in future, या फिर उनको थोड़ा सा वहाँ पे ठीक सिचुएशन चाहिए, थोड़ा सा हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, कि मतलब बोलते हैं ना हम लोग कि मेंटली सेटिस्फेक्शन. अगर पैसा रहता है हाथ में, तो वी आर मेंटली स्टेबल, वी कैन से. अगर पैसा बिल्कुल भी हाथ में नहीं है, सो वी स्टार्ट गेटिंग स्ट्रेस कि अरे बाप रे पैसा नहीं है, अभी क्या होगा, व्हाट विल गोइंग टू हैपन इन इमरजेंसी सिचुएशन. तो उसके लिए टू दैट इफ यू आर कीपिंग द लिक्विडिटी, और इफ यू आर कीपिंग द कैश विथ यू, so that will going to give you the courage and the confidence. Okay, so these are all the things that Keynes have considered why people are preferring the liquidity. So what he understood here, कि
जो चीज़ों के लिए पैसा रखा जाता है एक सेफर साइड के लिए, वो बेसिकली तीन चीज़ों के लिए रखा जाता है. तो द मोटिव फॉर होल्डिंग मनी इज ट्रांजैक्शन, transaction motive, precaution motive and speculative motive. See, we have already seen the transaction motive. Transaction motive में हम लोगों ने ये देखा था कि इनकम के अकॉर्डिंग, कि जिनका इनकम गैप मतलब इनकम अर्न करने का गैप जिनका कम रहेगा, वो लोग वहाँ पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे. ओके. और जिसका इनकम मतलब इनकम रिसीव करने का गैप ज़्यादा रहेगा, मतलब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देता कि वीकली अर्नर, देन व्हाट वी कैन से मंथली अर्नर. तो जो वीकली अर्नर है, दे विल गोइंग टू डिमांड मोर मनी एंड दे विल नॉट गोइंग टू मतलब वो लोग ज़्यादा अपने पास कैश रखना प्रीफर नहीं करेंगे, बिकॉज दे न्यू कि आफ्टर 1 वीक दे विल गोइंग टू गेट द मनी. तो वहाँ पे वो इतना संभाल संभाल के खर्चा नहीं करेंगे. But when we'll talk about the salary earner like monthly earner या फिर वी कैन से ईयरली अर्नर, तो वो लोगों के लिए थोड़ा वहाँ पे मतलब पैसा जो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो खर्चा करते हैं वो थोड़ा सा वो लोग संभाल के खर्चा करेंगे. ओके. तो दिस वे डिमांड फॉर मनी विल बी डिफर एज पर द टाइम गैप. देन हम लोगों ने देखा बिजनेस मोटिव. हाँ, बिजनेस रिक्वायर डे टू डे ट्रांजैक्शन. बिजनेस को बेसिकली किस चीज़ों के लिए पैसा लगता है? फॉर डे टू डे दे नीड टू हैव द मनी फॉर द रॉ मटेरियल, टू pay for the electricity, rent and wages and to pay for the various bills. Okay. तो उनके लिए उनको पैसा लगता है. And for that reason they are basically demanding the money. So when we say about the business motive, so yes, in the business motive also there are people are demanding money for the transaction purpose. देन हम लोगों ने यहाँ पे देखा था द अमाउंट ऑफ मनी हेल्प ऑन ट्रांजेक्शन मोटिव डिपेंड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. कि लेवल ऑफ इनकम के वजह से कैसे डिफरेंसेस रहता है, कि अगर किसी का सैलरी ज़्यादा है, ठीक है, सो रिच रिच पीपल विद देयर हायर इनकम होल्ड लार्जर अमाउंट ऑफ मनी दैन द लेस वेल टू डू. मतलब जिनका सैलरी ज़्यादा रहेगा, ऑब्वियसली उनका जो बेसिक नेसेसिटी है वो उनके सैलरी के 20 या 30 पार्ट में ही कंप्लीट होता रहेगा. सो रिमेनिंग मनी दे कैन कीप इट एज अ सेविंग. ओके. वो वहाँ पे ज़्यादा पैसा अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उसी जगह पे अगर हम लोग गरीब लोगों की बात करेंगे तो वहाँ पे उनका खुद का सैलरी ही उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता है. ओके. एंड देन द टाइम इंटरवल, दिस पार्ट आल्सो वी हैव सीन कि टाइम गैप कितना रहेगा इनकम आने के लिए. प्राइस लेवल, तो जितना ज़्यादा प्राइस रहेगा उतना ज़्यादा हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी. सो डिमांड फॉर मनी विल गोइंग टू इंक्रीज. वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट राइज द ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी वुड राइज. मतलब क्या है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. ये जो एम्प्लॉयमेंट है, दिस इज बेसिकली फॉर द रिसोर्सेज. जितना हम लोग अपने बिजनेस में ज़्यादा रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करेंगे, सो वेदर इट इज़ लेबर और वेदर इट इज़ व्हाट वी कैन से रॉ मटेरियल, तो जितना हम लोग उनको यूज़ करेंगे, जितना एम्प्लॉय करेंगे, उतना हमें पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. क्यों पड़ेगी? बिकॉज हमें उनको खरीदना है इसके लिए. ओके. सो दिस पार्ट वी हैव सीन फॉर द ट्रांजैक्शन मोटिव. तो व्हाट इज इनकम मोटिव एंड व्हाट इज बिजनेस मोटिव? इनकम मोटिव में हम लोग को सैलरी के बारे में बात करना है, और वहाँ पे फिर ट्रांजैक्शन धीरे धीरे किया जाता है, कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग बताएंगे. बिजनेस मोटिव में यू कैन से डे टू डे ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़ती है लोगों को. मतलब जो बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर है उनको वहाँ पे पेमेंट देना पड़ता है एवरी डे पे बेसिस पे. इलेक्ट्रिसिटी के लिए रहने दो, रॉ मटेरियल के रहने दो, इसके लिए वहाँ पे मतलब ये ट्रांजैक्शन के लिए वहाँ पे डिमांड फॉर मनी किया जाता है. ओके. देन द प्रिकॉशनरी मोटिव, देखो अभी ये हम लोग नए से स्टार्ट करें. ट्रांजैक्शन मोटिव मैंने लास्ट सेक्शन में ही पढ़ा लिया था. अभी हम लोग प्रिकॉशनरी मोटिव स्टार्ट करें, और ये नया पॉइंट है तो इसको ध्यान से सुनना है आप लोगों को. सी, it is necessary to be cautious about the future which is uncertain. People suffer from all sorts of vague doubts and fluctuating status of confidence and courage. Uncertainty is the important element in Keynesian precautionary motive. देखो, precautionary motive is totally based on uncertainty. ये ध्यान में देना आपको, uncertainty के ऊपर precaution हम लोग क्यों करें? Because we are uncertain about the future. We don't know what will going to happen. So this precautionary motive is totally based on the concept uncertainty. An additional amount of money over and above for the known requirement is held for the contingencies requiring sudden expenditure and for unforeseen opportunities of advantageous purchase.
Individuals hold money to meet unexpected increase in expenditure due to illness, accident, and any other unforeseen emergency. Money may also be required to make up a fall in income due to temporary unemployment. Business people hold cash with them to meet any unforeseen expenditure or to take advantage of favorable market condition to purchase their requirement when price decline. Okay, so what do you understood through this? Precautionary motive. People are keeping cash. People are holding liquidity for the precautionary motive. They are holding the cash for the precautionary motive मतलब uncertain situation के लिए. अनसर्टन सिचुएशन में क्या क्या आ सकता है? अनसर्टन सिचुएशन में जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी हम लोग बोल सकते हैं कि अचानक से हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए, तो उसके लिए पैसा अपने पास होना चाहिए. इवन इतना ही नहीं तो फ्यूचर में वी डोंट नो कि कभी कुछ एडवांटेजेस सिचुएशन आ जाएगा. एडवांटेजेस सिचुएशन आ गया इन द सेंस कि जैसे तुम्हें कोई चीज़ खरीदनी है और वो आपको ऐसा लगता है कि नहीं फ्यूचर में शायद ये चीज़ मेरे लिए अवेलेबल रहेगी, तो उस टाइम के लिए मैं अभी से पैसा अपने पास जमा करके रखता हूँ. So for that reason also you will going to keep the money. But I think for precautionary motive we should give more importance on the uncertainty. Uncertainty like for the during emergency मतलब जो अपना साइकोलॉजी है ह्यूमन बींग्स का, हम लोग बेसिकली इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही रखते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव की अगर बात करेंगे तो. लेकिन बिजनेस पीपल का वैसे रहता है कि उनके वो भी इमरजेंसी के लिए रखते हैं कि अगर कुछ कंपनी में कुछ लॉस हो गया तो वहाँ पे पेमेंट देने के लिए. अगर इन फ्यूचर प्राइस कम होता जाता है तो वहाँ पे कैसे फिर मैनेज करना है, प्रॉफिट कम हो गया तो उसको बराबर से रखने के लिए दे शुड एबल टू प्रोवाइड द मनी टू द लेबर एंड एवरीवन. तो उसके लिए वो लोग अपने पास पैसा रखते हैं फॉर द or sometimes for the taking the advantage of favorable market also. I think taking the advantages of favorable market है ना, ये आपको है ना नेक्स्ट मोटिव में आएगा, इसमें प्रिकॉशनरी में मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए. Then, demand for precautionary motive, like the transaction motive, also depends on the level of income. The amount of money kept for this motive varies directly with the income. Rich people will have a larger amount for this motive as against the poor, who may have hardly any balance for this purpose. Similarly, business firms' demand for money depends on their turnover also. Here also the smaller firm will have a lesser amount. A firm's precautionary demand for money is influenced by political uncertainty too. When political conditions are unstable, firms tend to become more cautious and hold a larger amount of cash. The transaction and the precautionary demand for money is function of the level of income as shown in the following diagram. So what they are trying to say here कि precautionary motive रहता है, जैसे ट्रांजैक्शन मोटिव तुम्हारा इनकम के ऊपर डिपेंड था, तो प्रिकॉशनरी मोटिव भी तुम्हारा इनकम के ऊपर डिपेंड रहेगा. अगर किसी का सैलरी ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, तो वो क्या करता है कि अपना जो उसका बेसिक नेसेसिटी है वो उसका फुलफिल होने के बाद में उसमें से ज़्यादा पार्ट वो अपने प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए रख सकता है, मतलब फ्यूचर के लिए रख सकता है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रख सकता है. लेकिन जहाँ पे हम लोग पुअर पीपल की बात करेंगे तो उनका सैलरी बहुत कम रहता है और सैलरी में से दे कैन सेव अ वेरी लिटिल पार्ट as a precautionary motive. Sometimes even they are sometimes even they are not able to save that amount also for the precaution purpose. Okay, तो उन्होंने कहा है कि precautionary motive is also depend upon the level of income. Then they are saying we will talk about the business. So business में precautionary motive कैसे basically affect होता है? So they are saying it is basically affecting by the political uncertainty. मतलब इनकम तो है ही कि इनकम के अकॉर्डिंग तो वो लोग अपने पास पैसा रखेंगे ही रखेंगे प्रॉफिट के हिसाब से प्रिकॉशन के लिए. लेकिन साइड बाय साइड इवन पॉलिटिकल चेंजेस अगर होता है, अगर कोई पार्टी चेंज होता है, गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं, तो दे आर हैविंग फियर कि लाइक आप लोगों ने देखा रहेगा कि बेसिकली स्टॉक मार्केट जो रहता है वो जब अपना एनुअल बजट डिक्लेयर होता है या फिर जब गवर्नमेंट चेंजेस होता रहता है, तो उस टाइम में स्टॉक मार्केट बहुत फ्लक्चुएटिंग रहता है. ओके, वो बहुत ग्रो कर सकता है, बहुत इंक्रीज कर सकता है या फिर बहुत ज़्यादा डाउन भी हो सकता है. ओके, तो सेम वे फॉर द बिजनेस पीपल ऑल्सो कि अगर गवर्नमेंट चेंज होता है कि चलो बीजेपी से कांग्रेस आ गया, शिवसेना आ गया, तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पे अफेक्ट करती है. So when during this time they are preferring to keep to hold a large amount of cash with them for the precautionary motive. Why it is so? Because there are chances like
every party will going to have the different opinion on the businessman or the business activity. They may going to charge the higher taxes, they may going to change the rules also. So for that reason they are keeping the precautionary motive, for that reason they are basically holding the cash for the precautionary motive. अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में कि हाउ the level of income will going to determine your transaction and the precautionary demand for money. See, both transaction and the precaution demand for money are based on the role of money as a medium of payment, and both are primarily influenced by the level of income. दोनों चीजें ऐसी है ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव कि जिसमें लोग पैसा अपने हाथ में रखते हैं टू डू द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि ट्रांजैक्शन में तो डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए, प्रिकॉशनरी में भी हम लोग उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा रखते हैं। हमें ये नहीं चाहिए कि पैसे का वैल्यू बढ़ना चाहिए। वी आर कीपिंग द कैश कि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगा उस टाइम पे आई कैन डू ट्रांजैक्शन। Okay, so therefore, in the transaction motive and in the precautionary motive, demand for money is kept for the money is been kept as a means of payment, or we can say as a medium of exchange. So both are primarily influenced by the level of income. Keynes clubbed them together. The combined demand for transaction and precautionary motive is expressed as L1 is equal to F and then into bracket Y. तो यहाँ पे जो L1 है, उन्होंने ये L1 को कहा, एक मिनट दिख नहीं रहा है मुझे भी। हाँ, यहाँ पे जो L1 है, that L1 is indicating demand for transaction and the precautionary motive. ठीक है, L1 मतलब demand for transactionary and precautionary motive. It will be depend on, if it means it will, if it means we are talking about the functional relationship. So it like your demand for transaction and the precautionary motive depend on the income. This is what the meaning of this equation. Okay. Figure 10.1 explain the relationship between demand for money L1 and the income. The demand for money for this motive is not influenced by the rate of interest except perhaps at a very high rate. It is not unlikely that people may decide to reduce their cash balance in order to earn some additional income offered by attractive interest rates. In general, however, the demand for money for transaction and the precautionary motive is interest inelastic. तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो तुम्हारा ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी रहता है वो टोटली तुम्हारे इनकम के ऊपर डिपेंड रहता है कि जितना तुम्हारा इनकम रहेगा उसके अकॉर्डिंग तुम लोग ट्रांजैक्शन करोगे, उसके अकॉर्डिंग तुम लोग प्रिकॉशन के लिए पैसा रखोगे। लेकिन आप इसके ये जो पैसा रखा है उसके अंदर आप ये बिल्कुल नहीं सोचोगे कि नहीं मुझे उसके थ्रू ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। अगर मैं उसको बैंक में रख रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। This will not be at all your point of view. You have kept that money only for the precautionary purpose कि अगर कुछ इमरजेंसी आया तो मैं इसको यूज करूंगा, जब मुझे जरूरत पड़ेगा उसके लिए मैं यूज करूंगा। So therefore we are, it has been said that under transaction and the precautionary motive people are demanding money which is totally interest inelastic, मतलब उनको वहां पे इंटरेस्ट अर्न करना है ऐसा बिल्कुल उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहता है। So therefore in figure 10.2, the vertical line, here you can see the vertical line ML1 indicates that the transaction and the precautionary demand for money, it is unaffected by the changes in the rate of interest. भले ही यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने दो या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने दो, लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शन एंड द प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए जो डिमांड फॉर मनी रहेगा वो ओ एम ही रहने वाला है, वो ना बढ़ेगा ना वो कम होगा। वाई इट इज सो? बिकॉज उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो चलो पैसा निकाल लो, या रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो चलो सेविंग करेंगे। दिस इज नॉट एट ऑल देयर पॉइंट ऑफ व्यू। सो देयरफॉर दे आर सेइंग इट इज टोटली इंटरेस्ट इन इलास्टिक, और इसके लिए है ये है तुम्हारा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में। ओके, so demand for money held under transaction and the precautionary motive is known as demand for active cash balances. ये चीज तुम लोग ध्यान में रखो तुम्हारे एमसीक्यू के लिए। ओके, डिमांड फॉर मनी फॉर द ट्रांजैक्शन एंड द प्रिकॉशनरी मोटिव इज नोन एज अ एक्टिव कैश बैलेंसेस। व्हाई दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड हियर, एक्टिव कैश बैलेंसेस? कैश बैलेंसेस तो तुम लोग को समझ में आ गया, लेकिन एक्टिव क्यों?
एक्टिव इसके लिए बिकॉज वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड सो दैट यू कैन यूज दैट कैश. ओके, इसके लिए उसको कहा है एक्टिव कैश बैलेंसेस. इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम. वी मे स्टेट this demand as L1 is equal to Fy. So you know that L1 it means the demand for transaction and the precautionary motive. F stand for functional relationship, or we can say the depend upon, and Y stand for income. So this indicate L1 is depend upon the income. Is this clear to you student? What is precautionary motive? समझ में आया नहीं आया? चलो मुझे पहले ये बताओ कि प्रिकॉशनरी मोटिव में जो मनी का फंक्शन है वो यहाँ पे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है या स्टोर ऑफ वैल्यू है? दोनों में से कौन सा फंक्शन यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिकॉशनरी मोटिव में? मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टोर ऑफ वैल्यू? बोलो स्टूडेंट, क्या समझा आपको? प्रिकॉशनरी मोटिव में लोग पैसा अपने पास रखते हैं तो वो स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए रखते हैं. स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब क्या? देखो, स्टोर ऑफ वैल्यू का मीनिंग ये होता है कि पैसा रखने के पास उसका वैल्यू बढ़ेगा. ओके, दिस इज व्हाट स्टोर ऑफ वैल्यू. मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब खर्चा करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए चाहिए करके, इमरजेंसी पे रहने दो या फिर डे टू डे ट्रांजेक्शन रहने दो. तो आपको क्या लगता है प्रिकॉशनरी मोटिव में दोनों में से किस फंक्शन को लिया है मनी के? यस, टेल मी. Yes, you all are sleeping or what? चलो बोलो जल्दी से. 7:30 को होता नहीं है क्या उठने के लिए? या इतना अलर्टनेस नहीं आ सकता है? व्हाट इज द सिचुएशन? चलो बोलो जल्दी. व्हाट यू ऑल फील? प्रिकॉशनरी मोटिव में पैसा अगर कोई रखता है तो वो पैसे का काम मीडियम ऑफ एक्सचेंज जैसा रहेगा या फिर पैसे का वैल्यू बढ़ाने जैसा रहेगा? चलो जल्दी बोलो. बाप रे, अभी मुझे लगता है मैंने लोरी गाई और तुम लोग सो गए हो. इज इट समथिंग लाइक दैट? Yes student, no, even you people are not writing in chat box also. ओके चलो, और एक सिंपल पूछती हूँ मैं तुम लोगों को. मुझे बताओ प्रिकॉशनरी मोटिव में जो पैसा रखा जाता है उसको किस किस टाइप का अच्छा, प्रेम ने यहाँ पे आंसर दिया है. प्रेम ने कहा है टू इंक्रीज द वैल्यू. देखो प्रेम, अगर मुझे आपको एक क्वेश्चन करना है कि अगर मैं आपको पैसा दे रही हूँ तो आपने तो डे टू डे ट्रांजेक्शन में थोड़ा बहुत पैसा रख दिया, उसमें मतलब थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर दिया. उसके बाद में आपने जैसे कि आपको सैलरी सपोर्ट 20,000 है, 20,000 में से 10,000 सैलरी आपका चला गया खर्चे में, ट्रांजैक्शन में. हाँ, ट्रांजैक्शन में 10,000 सैलरी चला गया. उसके बाद में बचा है अभी 10,000 सैलरी. तो 10,000 सैलरी में से आप 5,000 प्रिकॉशन के लिए रखोगे और 5,000 कहीं पे इन्वेस्टमेंट करोगे. तो मुझे ये बताओ, ये जो 5,000 आपने प्रिकॉशन में रखा, तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा क्या वो 5,000 का मेरा पैसा थोड़ा और बढ़ना चाहिए करके? मतलब अगर मैं 5,000 अपने पास रख रहा हूँ या फिर बैंक के पास रख रहा हूँ, देखो मतलब कौन सा 5,000 बोल रही हूँ मैं. एक 5,000 आपने प्रिकॉशन के लिए रखा, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखा. आपने वो शायद घर पे रखा या फिर बैंक पे रखा है. इमरजेंसी सिचुएशन मतलब क्या रहेगा? कोई अगर अचानक से बीमार पड़ जाएगा उसके उसके खर्चे के लिए, यही तुम लोग अज्यूम करो. ठीक है, तो वो पैसे के लिए तुम लोग एक्सपेक्ट करोगे क्या कि वो पैसा का जो मैंने 5,000 रखा है तो नेक्स्ट मंथ तक वो 6,000 तक होना चाहिए करके, अगर मैं बैंक में रख रहा हूँ? नो मैम, नो. बिल्कुल नहीं ना. तो इसके लिए उसको क्या कहा जाएगा? इंटरेस्ट इन इलास्टिक. क्योंकि वो तो मैंने इमरजेंसी के लिए रखा है तो मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि उसका वो पैसा बढ़े करके. हाँ, जो लेकिन मैंने 10,000 जो बचा हुआ था उसमें से 5,000 प्रिकॉशन के लिए रखा और 5,000 मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा, तो वहां पे मैं बोलूंगी कि हाँ वहां पे मेरा पैसा बढ़ना चाहिए. लेकिन जो मैंने प्रिकॉशन के लिए रखा है मैं उसके लिए एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि वो मेरा पैसा बढ़ना चाहिए. ओके, so therefore it will be considered as interest in elastic. समझा? इसके लिए वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रिकॉशन मोटिव में जो पैसा रखा जाता है इट इज फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नॉट फॉर द स्टोर ऑफ वैल्यू. क्लियर? यस प्रेम एंड ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर? कोई आंसर नहीं देगा. Okay, now next one here. Here
लाइक प्रिकॉशन मोटिव में जो पैसा रखा जाता है, जो कैश बैलेंसेस रखा जाता है, उसको एक्टिव कैश बैलेंसेस कहा जाएगा या फिर पैसिव कैश बैलेंसेस कहा जाएगा? व्हाट डू यू ऑल से? विल इट बी कंसिडर्ड एज एक्टिव और द पैसिव? कैश बैलेंस हम लोग रखते हैं ना, तो उसको इमिडिएटली हमें खर्चा करना, मतलब इमिडिएटली इन द सेंस वेन एवर रिक्वायर्ड, हमें वहाँ पे पैसा इमिडिएटली मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आंचल ने लिखा है एक्टिव, हाँ वेरी गुड आंचल, चलो मुझे ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, देन द नेक्स्ट वन ईयर, वेन वी आर एक्सप्रेसिंग with the equation demand for money for the transaction and the precautionary motive, so what is that equation? Can anyone explain me? इक्वेशन क्या है उसका? डिमांड फॉर मनी एंड डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन का बताओ, व्हाट इज द इक्वेशन? L1 is equal to, F bracket Y bracket four. हाँ, L1 is equal to F into bracket Y. So what is that indicating here? Demand for money for the transaction and the precautionary is depend upon what? Tell me. As per the equation, is depend upon, Function of the income. yes, it depend upon the level of income. Very good. Okay, so this is what your transaction, sorry, we have seen the transaction and the precautionary motive. नेक्स्ट है तुम्हारा स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव क्या रहता है? वो अभी बताओ या बाद में बताओ तुम लोगों को? ओके, द पॉइंट इज क्वाइट बिग। आई थिंक आई टेक योर अटेंडेंस फर्स्ट, अगर टाइम बचता है देन विल स्टार्ट हियर। ओके, क्या मैं रखी